میں نے سرد لہجے میں وہ بات کہہ کر فون بند کر دیا۔ بینکاک پہنچنے کے بعد مجھے کسی بھی لمحے تنہائی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ احساس بیکاری سے جنم لیتا ہے اور میں وہاں آنے کے بعد ایک دن بھی بیکار نہیں رہا تھا۔ اسد سے ملاقات ہونے کے بعد ڈان برنارڈ تک رسائی کی راہ نکلی تھی اور پھر سوبراج کے وہاں پہنچنے کی خبر نے حالات میں مزید گرمی آنے کا امکان پیدا کر دیا تھا۔ غزالہ بھی اس پیش رفت پر خوش تھی۔ پاکستان سے روانہ ہوتے ہی وہ یہ سوچ کر اداس تھی کہ ہم اپنی مرضی سے اپنا ملک اور شہر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ہمارے خلاف پیدا ہو جانے والے حالات کے جبر نے ہمیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم بینکاک پہنچ کر بیکاری اور جلا وطنی کے عالم میں اپنا وقت بسر کریں گے۔ ان امکانات کے باوجود اس نے سفر کی تیاری میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ وہ خود بھی اس بات سے پریشان رہتی تھی کہ ہمارے خلاف غیر ملکی دشمنوں کی سازشیں روز بروز زور پکڑتی جا رہی تھیں۔ اس نے کئی بار اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ حالات کے اس گرداب سے نکلنے کے لیے مجھے کچھ عرصے کے لیے خاموشی کے ساتھ ملک سے باہر نکل جانا چاہیے۔ اس سفر کے لیے ہمیں زیادہ منصوبہ بندی کی مہلت نہیں ملی تھی۔ حالات خود بخود اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ آخرکار ہم پاکستان سے باہر آ گئے۔ اگلی صبح اسد اپنے وعدے کے مطابق 11 بجے آ گیا اور میں نے اسے اوپر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے آتے ہی سلام دعا کے بعد پچھلے روز کے 2 پاکستانی اخبار میرے سامنے ڈال دیے۔ دیار غیر میں اپنے وطن سے آئے ہوئے ہر سندیسے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ پورے اخبار تھے۔ میں نے جو ہی ایک اخبار کی تہہ کھولی، پہلے صفحے کے نچلے حصے میں چھپے ہوئے بڑے سے اشتہار پر نظر پڑتے ہی میرے ذہن میں جلال کے الفاظ تازہ ہو گئے۔ اس نے اپنی پہلی کال ہی میں مجھے بتا دیا تھا کہ پچھلے دن کے اخبارات میں امریکیوں نے میرے اور ویرا کے خلاف نمایاں انعامی اشتہار چھپوائے تھے۔ اسد کی مہربانی سے ان میں سے ایک اشتہار اس وقت میرے سامنے تھا۔ اشتہاری متن مختصر اور بہت نمایاں تھا۔ ماضی کے مقابلے میں اس میں کئی تبدیلیاں کر دی گئی تھیں جو چونکا دینے والی تھی۔ اس بار انہوں نے مجھے مفرور اشتہاری مجرم قرار دیا تھا۔ پاکستان میں میرے خلاف باقاعدہ FIR کے اندراج کے بغیر مجھے باضابطہ طور پر مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ان لوگوں نے ہاکس بے پر سنی ہٹ کے خونی واقعے کو بنیاد بنا کر مجھے ملزم نامزد کیا تھا۔ اس بارے میں وہ بڑی حد تک حق بجانب تھے، کیونکہ ان کے 2 تربیت یافتہ کمانڈوز میرے ہاتھوں ان زہریلی سوئیوں کے شکار ہوئے تھے جو میری ذات سے منسوب ہو کر رہ گئی تھیں۔ پہلے بیم گن میری شناخت ہوا کرتی تھی، بعد میں زہریلی سوئیوں کا چرچا شروع ہو گیا۔ یہ بات کسی کے علم میں نہیں آ سکی تھی کہ وہ سری والاثر زہر سوئیوں کے ذریعے میری شکار کے جسم میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مخرج وہ کوکلے اور زہر سے بھرے ہوئے مصنوعی نگینے تھے جو اول خان سے ملنے والی انگوٹھیوں میں جڑے ہوئے تھے۔ اشتہار میں میری کوئی تصویر نہیں تھی۔ دھندلائی ہوئی ناقابل شناخت تصویر کو انہوں نے سرے سے حذف کر دیا تھا۔ البتہ ویرا کی پرانی تصویر بہت واضح تھی۔ ہم دونوں پر سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے اور ہمیں پاکستانی قانون کے ساتھ بعض امریکی قوانین کا مجرم بھی قرار دیا گیا تھا۔ ہم دونوں کے بارے میں کارآمد مخبری کرنے والوں کے لیے $2 ملین کے الگ الگ انعام کے ساتھ مکمل رازداری، تحفظ اور مستقل امریکی شہریت فراہم کرنے کے اعلان اخبار میں موجود تھے۔ میں نے دوسرے اخبار کا جائزہ لیا۔ اس کے پہلے صفحے پر بھی وہی اشتہار من موجود تھا۔ جلال کی زبان سے اشتہارات کا ذکر سن کر میں نے انہیں زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ امریکیوں کی طرف سے ماضی میں کسی نہ کسی قانونی سہارے کے ساتھ وہ اشتہار آتے رہے تھے، لیکن اسد کے لائے ہوئے اخبارات دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئی تھی۔ اول خان نے مجھے یہ بتایا تھا کہ امریکیوں نے ہاکس بے کے تفریحی مقام پر ہونے والے تصادم کے بعد میرے خلاف خاموشی سے FIR کرا دی تھی اور اسی وجہ سے میری پاکستان میں موجودگی مخدوش ہو گئی تھی۔ جلال نے البتہ وہ حقیقت چھپا کر اپنا سارا زور اس بات پر صرف کر دیا تھا کہ میں جلد از جلد پاکستان سے باہر نکل جاؤں۔ آخرکار وہ اپنی ان مخلصانہ کوششوں میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا، ماضی میں انہوں نے ویرا کو اپنا قومی مجرم بنا کر مجھے اس کے سرگرم معاون کے طور پر اپنا ہدف بنایا تھا۔ میرے خلاف قتل عمد کی شکایات کے اندراج کے بعد انہیں اس آڑ موڑ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں براہ راست ان کی دسترس میں آ گیا تھا۔ کراچی سے بینکاک کے لیے روانہ ہونے تک مجھے یہ احساس نہیں ہو سکا تھا کہ میرے خلاف حالات کتنا خطرناک رخ اختیار کر چکے تھے۔ جلال کے رویے کو میں احتیاط اور دوست نوازی کا نتیجہ سمجھ رہا تھا، جبکہ وہ دباؤ میں آیا ہوا تھا۔ یہ اوپر سے آنے والے اسی دباؤ کا نتیجہ تھا کہ میرے پاکستان سے نکل آنے کے بعد کراچی میں 2 افراد کو ڈینی ہونے کی شبے میں پکڑ لیا گیا تھا تاکہ امریکیوں کا منہ بند کیا جا سکے۔ مجھے مان لینا پڑا کہ جلال نے اس معاملے میں بھی بہت ہوشیاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ ان دونوں کو اس کے محکمے نے نہیں پکڑا تھا، ان کے ایما پر کسی اور ایجنسی نے گرفتار کیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دونوں بے گناہ نہیں ہوں گے، یقینی طور پر سنگین جرائم میں ملوث رہے ہوں گے۔ ان کے ریکارڈ کی پوری جانچ پڑتال کے بعد ان پر ہاتھ ڈالا گیا ہوگا۔
वो लोग शुबे में किसी एक शख्स को गिरफ्तार करते तो बाज परोस के सिलसिले में अमरीकी उसके जिंदगी जहन्नुम बना सकते थे। इनके आदमी मारे जा रहे थे। वो हर कीमत पर तफ्तीश में शामिल रहने की कोशिश करते और कामयाब हो जाते। फिर इकलौते मुलजिम से डैनी होने का इकबाली बयान लेने के लिए अपनी पूरी कोशिशें सर्व कर देते। 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी से वो खतरा टल गया था। यकीन में भी यकीनी और तजब्जब का उनसर गालिब आ गया था। वो दोनों बैक वक्त डैनी नहीं हो सकते थे। तफ्तीशी हुकाम का बेयकीनी का रवैया इन दोनों को बहुत से नागुफ्ता मसाइल से बचा सकता था। वक्त को टालने के लिए इससे बेहतर कोई राह नहीं हो सकती थी। मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी के बाद मेरी तलाश की मुहिम ठंडी पड़ जाती। कुछ दिन दोनों मुलजिमों से तफ्तीश में गुजर जाते। आखिरकार ये साबित हो जाता कि अपनी नापसंदीदा और गैर कानूनी सरगर्मियों के बावजूद इन दोनों में से कोई डैनी नहीं था। किस्सा वहीं खत्म हो जाता और अमरीकी तफ्तीशकार मायूसी के आलम में अपने बाल नोचते रह जाते। इस नाकामी के बाद मेरी तलाश की मुहिम दोबारा शुरू हो जाती। इसमें कोई जोश होता न जज्बा। वो कागजी खाना पूरी के लिए चलाई जाने वाली एक रवायती मुहिम होती। अमरीकी थक हार कर खामोश हो जाते। किसी अगले बड़े वाक़े तक के लिए हर महाज पर खामोशी छा जाती। मेरी पाकिस्तान से रवानगी तक सूरत हाल वाकई बहुत नाजुक थी, जिसे बहुत होशमंदी के साथ टालने का अमल बदस्तूर जारी था। मेरे तजिए के मुताबिक मायूसी और झंझलाहट एक मरतबा फिर मेरे सफ़ेद फाम दोस्तों का मुकद्दर बनने वाली थी। तुमने देख लिया कि लोग किस तरह डैनी की जान के दर पे हैं, असद ने मुझसे कहा। वो इसे जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़ना चाहते हैं। लोगों की बात करके तुमने मुझे भी लपेट लिया है। लोग नहीं, सिर्फ अमरीकी अहलकार कहो। मैंने मुस्कुरा कर उसकी तस्दीक की। तुमने बहुत अच्छा किया कि कल के अखबारात अपने साथ ले आए। इन्हें देखे बगैर किसी बात का सही अंदाजा नहीं हो सकता था। मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं, उसने अपनी संजीदगी बरकरार रखते हुए कहा। अमरीकी हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के बदतरीन दुश्मन है। एटमी इस्तेदाद के मैदान में तरक्की से रोजमर्रा कारोबार तक में यही सूरत कार फरमा है। इनका दावा यह है कि वो हमारे दोस्त हैं। गजाला ने लुकमा दिया। इनकी दोस्ती ऐसी है तो दुश्मनी क्या होगी। इनके हुक्मरान ताकत के नशे में बदमस्त होकर जमीन, आसमान और समंदरों में अपनी बड़ाई के दावे करते रहते हैं। इनकी ख्वाहिश है कि अब दुनिया इनकी मर्जी पर चले। जो इस राह पर चलने से इनकार करे, इसका सर कुचल दिया जाए। मैंने कहा, इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। असद बोला, सब मिलकर इन्हें सफाई हस्ती से मिटा देंगे या वो सब के सब बस्तियों को ताराज कर देंगे। यह आलमी सियासत की बातें हैं। इनका रुख मोड़ना हमारे बस से बाहर है। मैंने गहरा सांस लेकर जवाब दिया, हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक काम कर रहे हैं। मैं मुख्तसर सी मुलाकातों में तुम्हारी कारकर्दगी का कायल हो गया हूँ। तुमने जिस तरह डान को राम किया है वो नाकाबिले यकीन है। अपने मुखातिब की बात को सुनना, समझना, फिर उसके दिल की तहरीर पढ़कर उसे बर्जस्ता जवाब देना हर एक के बस की बात नहीं। सच पूछो तो कल इनाम के लालच में तुम्हारी जुबान से डैनी को पकड़वाने का जिक्र सुनकर मेरे जहन में बैक वक्त 2 मुतजाद ख्यालात आए थे। वो क्या? गजाला ने अखबार एक तरफ डालकर बेख्तियार सवाल किया। तुम खुद डैनी हो और नाम बदल कर यहाँ आए हो, या फिर वाकई इसके बदतरीन दुश्मन हो? उसने मुझसे मुखातिब होकर कहा, कोई भी आम पाकिस्तानी इसके बारे में सफाकी से बात नहीं कर सकता। असद, खुदा का खौफ करो। किसी को इन बातों की भनक भी मिल गई ना तो मेरी जिंदगी आजाब बन जाएगी। मुझे वही रहने दो जो मैं हूँ। मुझे दुनिया जहान से लड़ने का कोई शौक नहीं है। मैंने वो बात यूं ही मजाक में कह दी थी। वही ख्याल था जो मेरे जहन में आया और गुजर गया। वह हंस कर बोला, रात को जलाल साहब ने बताया कि तुम डैनी के बहुत बड़े गायबाना मद्दाह हो। तुमने अब तक ये नहीं बताया कि काम का क्या रहा। मैंने यकायक मौजू बदल दिया। ये 5 नाम और पते हैं। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। 2 नाइट क्लब और 3 कैसीनो, सब राजन की मलकियत हैं। इसका छठा अड्डा व्हाइट हाक है जो खुले समंदर में अपनी जगह बदलता रहता है। आजकल हार्बर से 2 नाट के फासले पर एक दलदली जजीरे के करीब लंगर अंदाज है। यह कोई राज की बात नहीं है। डानवी राजन के इन ठिकानों के बारे में जानता होगा। वो सवाल करते हुए मैंने कागज पढ़कर अपनी जेब में डाल लिया। लिफाफा मेज पर रह गया। यह खुला राज है, डान को इल्म होना चाहिए। इतना कहकर वो खामोश हो गया, लेकिन इसके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि अपनी बात जारी रखने के लिए वो मौजू अल्फाज की तलाश में था। राज को मैंने बहुत गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि फिलहाल मुझे तुम्हारे साथ शामिल नहीं होना चाहिए। इब्तदाई मराहिल तुम खुद तय कर सकते हो। आखिर उसने झिझकते हुए अपनी जुबान खोली। तुम्हें यह ख्याल क्यों आ गया? मैंने चौंक कर सवाल किया। अभी राजन के मफादात को नुकसान पहुंचाने का मरहला है। यह काम तुम डान के आदमियों से लोगे। मुझे कुछ नहीं करना होगा। बेहतर होगा कि मैं अलग रहूं। कल तुम दूध में से मक्खी की तरह निकाले जाने की शिकायत कर रहे थे। आज एक नई बात क्यों कर रहे हो? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है? वो धीरे से हंस दिया। तुम्हारी कोई बात बुरी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 2-3 दिनों में तुमसे अजीब सी अपनायत महसूस होने लगी है। यह किस्सा कुछ और है।
यहाँ आने से पहले मेरी जलाल साहब से बात हुई थी। उन्होंने फैसला करने की जिम्मेदारी तुम पर डाल दी है। ओह, तो तुम जलाल से भी बात कर चुके हो? मैंने बेसाख्ता कहा। पता तो चले कि किस्सा क्या है। ऐसी क्या बात हुई है कि तुम्हें अपने अफसर से रजू करने की जरूरत पेश आ गई? साफ बात यह है कि थाईलैंड पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। यहाँ राजन के ठिकानों को निशाना बनाया गया तो अमनो अमान का मसला पैदा होगा। ज्यादा वाज़ेह अल्फाज में ऐसी कार्रवाइयां दहशतगर्दी के जुमरे में शुमार की जाएंगी। आगे बोलो। उसे खामोश पाकर मैंने ठोका। हर काम के लिए मंसूबाबंदी की जाती है, तुम भी करोगे? उसने दोबारा कहना शुरू किया। यह जरूरी नहीं कि हमेशा हर काम हमारे मंसूबे के मुताबिक पूरा हो। कोई नाकामी हुई और डान का कोई आदमी धर लिया गया तो मेरा नाम खुलने का खतरा पैदा हो सकता है। मैं यहाँ सरकारी पोजीशन में तैनात हूँ। ऐसी किसी नाकामी के असरात बहुत दूर रस होंगे जिन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। यही खतरा मुझे भी लाहक हो सकता है। मेरे बारे में तुम क्या कहोगे? तुम पाकिस्तानी जरूर हो मगर इनफरादी हैसियत में यहाँ आए हो। मेरी और तुम्हारी पोजीशन में फर्क है। खुदा न खास्ता तुम्हारे साथ कुछ होता है तो तुम्हारे अमाल की जिम्मेदारी पाकिस्तानी हुकूमत पर नहीं डाली जा सकेगी। इनफरादी तौर पर कोई कुछ भी कर सकता है, फिर तो तुम कहीं भी मेरा साथ नहीं दे सकोगे। तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि इब्तदाई मरहला मेरी शमूलियत के बगैर भी तय किया जा सकता है। इसमें मेरा कोई अहम किरदार नहीं है। जहां जरूरी हुआ मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा। ये ना समझो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूं। वो मोहतात रवि इन लोगों का खासा थी। मैं पाकिस्तान में बारहा ऐसे तजर्बात से गुजर चुका था। वो लोग किसी काम से मुंह नहीं मोड़ते थे लेकिन हमेशा अपना दामन बचाकर चलने के आदी थे। शायद आज मुझे अकेला जाना पड़ेगा। मैंने उससे तायद चाही। मैंने हकायक तुम्हारे सामने रख दिए हैं। फैसला तुम्हारा होगा कि मैं इसकी पूरी पाबंदी करूंगा। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ डान के घर जाने के लिए तैयार हूं। उसने खंदा पेशानी से कहा। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेकर कहा। कोशिश करूंगा कि तुम्हारे बगैर काम चल जाए। कल मैंने डान से तुम्हारे मुतरज्जम होने का जिक्र कर दिया था। दुआ करो कि उसके बुलाए हुए आदमी अंग्रेजी में कोरे ना हो। मैं फिर कह रहा हूं कि कहीं कोई जरूरत या मजबूरी पेश आ गई तो मैं हाजिर हूं। मुझे तुम्हारा साथ देने में कोई उज़र नहीं है। कोशिश ये है कि खतरात से बचकर चला जाए। मुझे अंदाजा हो रहा है कि इंतखाब के बाद तुम सबकी एक ही सांचे में ब्रेन वॉशिंग की जाती है। मैंने हंस कर कहा। मुश्तरक मामलात पर सब एक बोली बोलते हैं। कल रात तुम जिस बेतकल्लुफी से फोन पर जलाल साहब से बात कर रहे थे इसकी वजह से मेरे दिल में तुम्हारी कदर मंजिलत बहुत बढ़ गई है। बेतकल्लुफी? मैंने हैर से कहा। तुमने गौर नहीं किया? मैं इससे बहुत अदब से बात कर रहा था। अली, मैं बच्चा नहीं हूँ। आप जनाब के मुखातिब के बावजूद तुम्हारे अंदाज में बेतकल्लुफी थी। अब भी तुम बराबरी से इनका जिक्र कर रहे हो। वो बहुत सख्त और ईमानदार अफसर हैं। अपने से जूनियर अफराद से ज्यादा बेतकल्लुफ होना पसंद नहीं करते। मुझे इन बातों का अंदाजा नहीं था। तुम बिला वजह मेरी इज्जत अफजाई पर तुले हुए हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैंने वो बात वहीं खत्म कर दी। मेरे लिए राजन के सब ठिकाने अहम थे। इनमें सबसे ज्यादा अहमियत वाइट हाग की थी। असर से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में वो राजन की ताज़ा तरीन और सबसे बड़ी सरमायाकारी थी जिस पर उसे खुद भी नाज था। सबसे अच्छी बात यह थी कि वाइट हाग शहरी बंदरगाह से काफी दूर खुले समंदर में लंगर अंदाज थी। ये बात यकीनी थी कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और ग्राहकों को शहर से इस लग्जरी बोट तक पहुंचाने के लिए शहरी घाट से बोट तक छोटी मोटी मोटर बोट्स चलती रहती होंगी। शहरी हदूद से बाहर खुले समंदर के सीने पर मौजूद वह बहरी इशरत कदा बैंकॉक के कानून की दस्तरस से आज़ाद था। असर की जुबान से पहली बार वाइट हाग का जिक्र सुनकर मुझे ख्याल आया था कि गोताखोर के साथ किसी छोटी और बर्क रफ्तार मोटर बोट में वाइट हाग तक पहुंचकर इसके नीचे कोई वाटर प्रूफ बम नस्ब किया जाए तो रिमोट कंट्रोल के जरिए वाइट हाग को किसी भी वक्त उड़ाया जा सकता था। सोचने की हद तक वो काम बहुत आसान और सनसनीखेज था, लेकिन अमली तौर पर उसके राह में बहुत सी दुश्वारियां थीं। सबसे बड़ा खतरा वाइट हाग पर मामूर मुसल्लह मुहाफिजों की तरफ से था। राजन ने बोट खरीदने से पहले यह इम्कान अपने ज़हन में रखा होगा कि इसके बहरी अड्डे पर समंदर की राह से कोई हरीफ या हासिद हमलावर हो सकता है। बुरा आदमी कोई भी मंसूबा बनाता है तो सबसे पहले इसके बुरे पहलुओं पर गौर करता है। छोटा राजन अपनी ज़ाहिरी हैसियत और अमारत के बावजूद ज़ेर ज़मीन दुनिया का एक बुरा आदमी था। वो बैंकॉक में डॉन बर्नार्ड से नबुर्द आजमा भी रह चुका था। इससे यह तवक्का नहीं की जा सकती थी कि इसने वाइट हाग जैसी बेशकीमत बोट के तहफ़्फ़ुज़ का कोई पहलू नज़रअंदाज कर दिया होगा। असल भी वाइट हाग पर हमला करने के हक में नहीं था। इसने सैमंदरा बोट को इफ्तिताही तकरीब के मौका पर दूर से देखा था। इसका अंदाजा था कि शाम के तफरीही औकात में इस पर 150-200 अफराद के समाने की गुंजाइश थी। इन आने जाने वालों के अलावा बोट पर हर वक्त मामूर रहने वाले मुलाजमों की तादाद भी काबिल लिहाज होनी चाहिए थी। बार, रेस्तोरां और छोटे कैबिनों में मदहोश जोड़ों को जुमला खदमात मुहैया करने वाले राजन के मुलाजिम जरूर थे, लेकिन सब के सब मुजरिम नहीं हो सकते थे। बोट को उड़ाने की सूरत में इन बेचारों की मौत यकीनी थी।
मैंने राजन की बोर्ड का ख्याल तर्क कर दिया। दूसरी 5 में से 4 जगहों पर हर आम आदमी तफरीह के लिए जा सकता था, लेकिन गोल्डन ड्रैगन नामी कैसीनो का मामला मुख्तलिफ था। इस जमीनी जुए खाने के हिफाजती इंतजामात व्हाइट हाग से कम नहीं थे। दाखिले के लिए रुकनीत की कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन आने वाले का शक्ल सूरत और लिबास से मुअज़्ज़ज़ और माकूल नजर आना ज़रूरी था। असल से इन मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू हो जाने के बाद मैं चंद मिनट में तैयार हो गया। फिर हम दोनों गजाला को अलविदा कहकर कमरे से बाहर निकल आए। असद को डाक, फोन और फैक्स के जरिए आने वाले पैगामात वगैरह की देखभाल के लिए अपने दफ्तर जाना जरूरी था। बैंकॉक के गुंजार ट्रैफिक की वजह से उसने जाती गाड़ी का रोग नहीं पाला था। इसकी आमदोरफ्त का इन्हिसार पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर था। वो होटल से टैक्सी में मेरे साथ रवाना हुआ और फिर एक करीबी बस स्टॉप पर उतर गया। इसे उतारने के बाद टैक्सी आगे रवाना हो गई। सेलर्स बार बैंकॉक में मशहूर था। ड्राइवर उसका नाम सुनते ही किसी हीलो हुज्जत के बगैर रवानगी पर आमादा हो गया था। असद को उतारने के बाद वो कुछ देर खामोश रहा, फिर टूटी फूटी अंग्रेजी में मुझसे मुखातिब हो गया। तुम सेलर्स बार क्यों जा रहे हो? मेरे लिए उसका पहला सवाल चौंका देने वाला साबित हुआ। वो तो इस वक्त बंद होगा। इसका दूसरा फिक्रा सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे वहां नहीं उसके करीब जाना है। तुम टूरिस्ट मालूम होते हो, तुम्हारे पास वक्त हो तो मैं तुम्हें बास बेहतरीन मकामात की सैर करा सकता हूँ। मेरा शहर बहुत खूबसूरत और रंगीनियों से भरा हुआ है। अगर तुम हमेशा हिल्टन के बाहर होते हो तो फिर किसी वक्त तुम्हारे साथ घूमूंगा। इस वक्त मुझे एक जानने वाले से जरूरी काम है। इधर कास्ट यूनिवर्सिटी के पास श्याम पार्क सिटी है, बहुत खूबसूरत जगह है। चाहो तो यहाँ से 10 मिनट के फासले पर मगरमच्छों के फार्म की सैर कर सकते हो। मैजिक लैंड यही शहर में है। शहर में बहुत से काबिल दीद बुद्ध मंदिर और पकोड़ा है। इनमें घुसकर आदमी सदियों पीछे चला जाता है। गोल्डन पैलेस जरूर देखना, वहां तुम बुद्धा की जड़ाऊ मूर्ति को देखते रह जाओगे। वो बोले जा रहा था और मैं खामोशी से सुन रहा था। मुझे इंतजार था कि वो मुझे इन लच्छेदार बातों में उलझाकर कब अपनी पटड़ी बदलता है। वो बेचारा रुक रुक कर मुझे अपने शहर के तारीखी विरसे के बारे में बताता रहा। अपने मुल्क के लिए वो बार बार सयाम का मतरूक नाम इस्तेमाल कर रहा था। जब उसने काफी देर तक जिंदा हुस्न और नजाकत का कोई जिक्र नहीं किया तो मैंने उसे टोक दिया। मैंने सुना है कि यहाँ की लड़कियां बहुत मेहमान नवाज होती हैं। उसकी धीमी आवाज में मायूसी उतर आई। रोजी कमाने के लिए लड़कियां हर किस्म के काम करती हैं, मगर इनकी ज्यादा आमदनी दलाल लूट देती हैं। इस काम में बहुत आमदनी है, मगर मैं लड़कियों की दलाली नहीं करता। तुम्हें कदम कदम पर ऐसे टैक्सी ड्राइवर मिल जाएंगे जो बहुत शौक से यह काम करते हैं। इन्होंने मुझ जैसे लोगों को भी बदनाम किया हुआ है। अपनी जगह पर सुन्न होकर रह गया। 5 उंगलियां वाकई बराबर नहीं होती। इस एक सादा लूज शख्स ने पल भर में बैंकॉक के बारे में मेरा तस्वुर बदल कर रख दिया था। पता नहीं शहर में इस जैसे कितने ड्राइवर होंगे। मुझे नदामत होने लगी कि मैंने उससे वो ज़ुबानी सवाल क्यों किया था। वो अपने शहर में होने वाले जिन्स के व्यापार से खुश नहीं था। उसकी नाखुशी का अंदाजा उसके कहे हुए चंद फिक्रों से हो गया था। मैंने उसकी दुखती हुई रग को मजीद छेड़ना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी इख्तियार कर ली। मेरे सवाल ने शायद उसे आजुर्दा कर दिया था। उसे भी चुप लग गई और सफर खामोशी के साथ तय होने लगा।